don't think there's another city in the entire world that has a capability of rising to any occasion, regardless of how good or bad it is. And we've seen that during the bomb blasts, we've seen that now during COVID. And when not a country, but an entire world goes to war, then you'll find that in a status of war you have the frontline shock troops who actually take the brunt of that war. And in our city we found a lot of incredible people who stopped their own lives, they halted their own pleasures, they even did not see their families for months, and they stepped up to make sure that we actually, that this horrible disease, COVID-19 and this virus did not impact more than what it would have. And having read the reports in the newspapers, it is quite amazing for a country as poor as ours and a city as congested as ours, and for a city which lacks the basic medical amenities that ours has for poorer people, that we held it to 3.5% to 4% of mortality rate. And I think that's better than most cities in the world, including New York, including London, including Rome, and including Italy. So it was quite an achievement, and this can only happen because people stepped into the breach, because people made the difference, not the facilities, not the money, not the hospitals, but it was the people of this city who stepped forward, abandoning their own personal comforts and lives at great risk to themselves. Because remember one thing, for the Janta it was only 3.5%. For the doctors it was much more. Yes. Because more doctors were struck down by COVID in their line of duty than any civilian did, than any people of the populace did, than even people in Dharavi did. So you can imagine how committed they were, despite the fact that they knew that if they got it, there was a very good chance that they would never come out again. And despite that, and that is what is called courage, true courage, in the face of an enemy which you can't even see. Usually when you know an enemy, you can see the enemy, and it's much easier to fight it. But when you cannot even see the enemy, and most of the time we were struggling to find a cure to the enemy, and it took us 1 year to actually struggle to find a vaccine. And before the vaccine, it was touch and go. Nobody really knew what worked. Nobody really knew that whether it worked or not, and what worked. So everybody said, so this works, that works, and they all found that eventually what works is people. What really works is the fact that the nursing staff, the constable on the beat, the municipal people who cleared the garbage, they worked. And they kept the city going, and they kept the city alive. And the spirit of Mumbai, I'm afraid, is unsurpassed. I don't think there's another city in the world like this. Whatever our problems are, whatever our issues are, the fact is that once you're a part of the city, you will never be happy anywhere else. Thank you. Very well said, because COVID has taught us what life is. And now I would like to invite Amarjit and Kalpana, please come on the stage. They come here, yes. Because yes, they are the pillar of the whole show. These two people have been working from last 10 days and making the event successful to make it, because it would not have been possible alone by me, and they are working day and night. So here, let us felicitate us, sir, today. They had to make a grand entry. Can we have the trophy? Sir, very well said that it is because of the जो जज्बा मुंबईकरों ने दिखाया, उसी वजह से धारावी, सभी को डर लग रहा था कि धारावी का क्या होगा, मगर we really fought. Yes, 0 cases at the moment, just because we all Mumbaikars are together. And this is a lovely shawl which
Dr. Daljit Kaur, especially brought from Assam, right, Daljit? This is from Manipur. Okay, fantastic. So, एक चीज नागालैंड से, एक मणिपुर से, खुद गुवाहाटी से, पूरा गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छा लगा यहाँ आकर, बच्चों ने इतना अच्छा डांस किया, आई वाज सरप्राइज्ड। और उम्मीद करते हैं फ्यूचर इनका बहुत अच्छा हो, बड़े स्टार बने और फिल्मों में काम करें, बड़े स्टेज पे काम करें। और आप लोग तो मुझे दिख नहीं रहे कि शायद मेरे कुछ पहचान वाले बैठे हों, तो थैंक्स। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में थोड़ी नजर आएगा पूरा। थैंक्स एनीवे। एंड आई वुड मैम, आई कांट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम। सर ये बहाना है, एक खूबसूरत सी बला वहां खड़ी है और एक खूबसूरत सी बला यहाँ आ जाए। ओए 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 मुबारक मुबारक। देश और हमारा मुंबई शहर तो काफ़ी कोरोना से इफेक्टेड था। और जो लोग भी हैं, चाहे वो पुलिस के फुल फोर्स के लोग हों, पैरामेडिक्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, सभी ने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले। और क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक इंडस्ट्री से हूँ और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, हम लोगों ने भी कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए एक अपना जो है हमने एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन डेवलप किया और उसके ऊपर हमारे प्रॉपर मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों के साथ में शेयर करके कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनसे भी ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे 30 to 40% बेटर उसके रिजल्ट्स आए हैं। और होपफुली सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक उसके सारे क्लियरेंसेस सारी मिनिस्ट्री और कंसर्न अथॉरिटी से हो जाएंगी और वो अनाउंस हो जाएगा। और वैसे उस प्रोडक्ट को हम लोग अपनी इम्यूनिटी को कायम रखने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आज कोविड-19 है, कल कोई और वायरस आ सकता है, कोई और नई स्ट्रिंग आ सकती है, तो यहाँ डरने की बात नहीं है।
आप जो है आयुर्वेद की मदद ले सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और हमारा तो प्रोडक्ट प्रूवन है। हमने उसमें एक एंटीवायरल हर्ब का इस्तेमाल किया है जो सभी प्रकार के वायरस से फाइट आउट कर सकती है। तो डरने की बात नहीं है। हम लोग एहतियात रखें, अच्छा खाना पीना खाएं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोई भी जो है वायरस जो है या कोई और भी बीमारी जो है हम लोग को परेशान नहीं कर सकती है। और बेसिकली हम इंडियंस का जो है मतलब हमको शुरू से ही हमारी एजुकेशन होती है कि अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए। इसी कारण एवरेज इंडियन का जो है इम्यून पावर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उससे अच्छा है और जिसके कारण कि हम लोग इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा पा सके हैं। और परमात्मा करे कि मतलब जो है बहुत जल्दी भारत भूमि से बीमारी चली जाए और दोबारा और कोई किसी तरह का पेंडेमिक नहीं आए। थैंक यू। लगता हूँ और नज़र नहीं लगती है ऐसा मेरी वाइफ बोलती है, हालांकि लगती नज़र। दोस्तों बहुत खुशी की बात है जब किसी भी कोरोना योद्धा को जब अवार्ड मिलता है और उसमें इस छोटे से कलाकार वीआईपी को बुलाया जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हम भी कुछ उनके लिए कर रहे हैं, उन योद्धाओं के लिए जिन योद्धाओं ने हमारे लिए किया है और थोड़ा सा मौका मिलेगा उनको हंसाने के लिए तो आज हंसाते हैं आए वो अवार्ड में। और दलजीत कौर जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ पर आने का। तो मिलते हैं बस कुछ ही क्षणों में, देखते हैं अवार्ड के अंदर क्या हो रहा है। दलजीत ने तो दिल जीत ही लिया है, आए वो अवार्ड करके। अब मैं दलजीत का दिल जीतने के लिए जा रहा हूँ अंदर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आयवा, थैंक यू आयवा, रंजीत जी। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि जितना वक्त हमने देखा पिछले साल कोरोना के वक्त बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपनी जान पे खेल के हम सबकी मदद की। तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है और हमें ये छोटे अवार्ड्स और इसकी बात नहीं, हम उनको दिल से सम्मान देते हैं। और मेरी तरफ से जितने कोरोना वॉरियर्स हैं उन सब के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और सर कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहें उनको तो कौन सा होगा? अभी रिपब्लिक डे भी था और ये बहुत ख़ास मौका है और मुझे लगता है कि उन सब के लिए इतना कहना चाहता हूँ, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरी तरफ से सब जितने भी कोरोना वॉरियर्स, जितने जो लोग हैं, जो लोग नहीं भी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए सेवा की, मुझे मेरी तरफ से उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम है, सैल्यूट है। थैंक यू सो मच। मुझे गाइड देना, प्राइवेट यार देखो, कोई जब भी युद्ध होता है किसी तरह का, चाहे नेबरिंग कंट्रीज के साथ या किसी और कंट्री के साथ, तो जब हम हमारे जो शहीद होते हैं और हीरोज होते हैं उनको हर टाइम द कंट्री फेलिसिटेट्स। और ये युद्ध से कोई कम नहीं है। आप वॉरियर्स वर वेरी सिंपल पीपल, दे weren't इवन ट्रेन्ड फॉर दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको कभी मालूम नहीं पड़ा था कि इतनी नौबत आएगी इस ऐसे ज़बरदस्त डिजीज से। तो फ्रॉम द सैनिटेशन वर्कर्स विच इज द म्यूनसिपल पीपल टू द पुलिस टू द नर्सिंग स्टाफ टू द डॉक्टर्स, दे हैड द मैक्सिमम कैजुअलिटीज। जो जितने लोग उनमें से मरे हैं आम जनता से नहीं मरे क्योंकि देवद है, आम जनता के सिर्फ 4% मरे, उनके कुछ 6-10% मरे आउट ऑफ डॉक्टर्स एंड ऑल द सैनिटेशन वर्कर्स। सो यू कैन इमेजिन दैट वो जो शहीद हुए हैं दे शुड बी गिवन मेडल्स बिकॉज दे फॉट अ मच बिगर वॉर देन एनी वॉर दैट वी एवर सीन। और इसको हमने अगर झेल लिया तो हम कुछ भी झेल सकते हैं। अभी आन दो। थैंक यू सो मच। वी आर ऑब्लाइज्ड कि सर ने अपना टाइम निकाला, कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया और हमें भी इंस्पिरेशन दिया और इनके आने से 4 चांद लग गए हमारे शो में।
बचपन से सर के हम एड फिल्म मिलना है एड गुरु को, और आज एड गुरु हमारे स्टेज पर है। बहुत अच्छा पहल है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छा लगा हमको, एज ए इनविटेशन राजू अंकल ने भेजा उससे, और बस। और हाल फिलहाल में अपने एल्बम रिलीज किया था, तो कैसा रिस्पांस है और आगे? बहुत अच्छा रिस्पांस है दिलविच का, और काफ़ी हमको उससे अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से, अच्छा लगा सबको। बस यही कहना चाहूँगा कि और देखते रहो और हमको सपोर्ट करते रहो। मैम आपसे हम सवाल करना चाहेंगे इस कोरोना वॉरियर्स के बारे में और आइबा के बारे में, और खुद क्या बोला है? मैं इनके बारे में मैं बोल देता पहले, बाद में वो बोलेंगे। वैद्य और भौमिक का एक एल्बम अभी आने वाला है, तो उसकी सारी प्लानिंग चल रही है। तो खास करके आज मीटिंग भी थी इनकी, और एक साथ साथ में अवार्ड भी था भौमिक का, और वैद्य को पूरी तरह से गुजरात में भी लॉन्च कर रहे हैं एज ए एक्ट्रेस। तो मैं इससे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ दोनों को कि आप आगे है ना। एक्चुअली ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि अवार्ड मिलेगा, और ना ही ये काम इसलिए किया था कि अवार्ड मिले इस पर, लेकिन जब आपकी कोशिशों के लिए आपको ये दिया जाता है तो अच्छा तो लगता है। तो एंड इट वाज अ सरप्राइज, सो आई लव्ड इट। हालांकि ये टाइम ऐसा था, काम ऐसा था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी फेडरेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिंटा को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से क्योंकि मैं सिंटा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हूँ, मैं इसीलिए ये काम कर पाई। ऑफ कोर्स जो काम हम एक्टर्स के लिए, उन एक्टर्स के लिए नहीं कर पाए जो हमारे मेंबर्स हैं, उसके लिए हमें बाहर से मदद लेनी पड़ी। बट थैंक्स टू ऑल दोज पीपल कि उन्होंने बहुत हेल्प की, और मैं आज उन लोगों का, चाहे वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुन पाए तो मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपकी वजह से ऐसे बहुत से लोगों का घर चला, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल। So hi, this is Bhargavati Sagathia and this is Saurabh Shingre. Hello. We have made a docu-series of capturing COVID-19 pandemic 2019, which was a situation where I believe nobody should face, no country should go through. Saurabh's mother is a nurse, and we saw her working 24/7. She's a comorbid patient. She is 57-year-old, and we saw her working so rigorously, and this actually impacted us, or this inspired us to capture these stories. So thank you so much for giving us this platform, and this was just a teaser of the docu-series which you will be... The teaser and this document is under process, and soon you will guys see one of the OTT channels. So thank you. Thank you very much. They have to still improve and work hard because there is so much competition. So it should be more organized in a bigger way with the famous people. एफर्ट तो बहुत ज़रूरी है, मगर उसके यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, यू गॉट टू डू समथिंग एंड यू हैव टू थिंक बिग, देन ओनली बिग थिंग्स विल हैपन। तो ये ज़रूरी है, मगर जैसे का मैं ट्रस्टी भी हूँ और रोटरी का गवर्नर रेड हूँ आज 30 साल से। तो कोरोना के ऊपर आईवा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने, सबसे बड़ी बात है, जो कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन करना, उनको अप्रिशिएट करना, क्योंकि उनको अप्रिशिएशन इतनी नहीं दी जाती जिसकी वजह से उनका मनोबल टूटता है। तो काफ़ी अच्छा काम किया। आज भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ें। बहुत अच्छा है, इसलिए जिन्होंने कोरोना के लिए कुछ न कुछ किया है उनको हौसला मिलेगा, उनको खुशी मिलेगी
वैसे मैंने कोरोना में एक गाना भी बनाया था, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना दूँ। जरूर जी। दुनिया में आया कोरोना, मुश्किल हुआ है जीना, आफत गले पड़ी है, मालिक हमें बचाना। दुनिया में आया कोरोना, मुश्किल हुआ है जीना, आफत गले पड़ी है, मालिक हमें बचाना। कोरोना से बचना है तो एक है उपाय। क्या है उपाय? तुम घर के अंदर रहना और साबुन से हाथ धोना। बाहर अगर हो जाना तो मास्क लगा के जाना। 2 गज की दूरी रखना और भीड़ से भी बचना। दुनिया में आया कोरोना, मुश्किल हुआ है जीना, आफत गले पड़ी है, मालिक हमें बचाना। जय हिंद। एकदम बहुत बढ़िया काम है और मैडम का तो उन्होंने बहुत अभिनंदन के पात्र काम किया है। सब बहुत ही अच्छा है। ऐसे फंक्शन होने ही चाहिए क्योंकि ऐसा इंक्रीज मिलेगा आप सबको तो कोई ना कोई आगे आएगा ना और करने के लिए, और इससे हमारा अच्छा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे फंक्शन होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए। और डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे बताए, सब बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा फंक्शन भी बहुत अच्छा हुआ और जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत बड़ा है, बड़ा ही अच्छा है। ऐसे ऐसे हो रहे। मेरा नाम नरेंद्र सोनी है। उनका और मेरा जन्मदिन भी एक ही है, साल भी वही है, महीना भी वही है और दिन भी वही है। और गुजरात, दोनों ही गुजरात से हैं। दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही है, दोनों का मदर का नाम भी वही है, फादर का नाम भी वही है, फादर के नाम की राशि हुई है, सिस्टर के नाम की राशि हुई है। तो ऐसे ही बहुत सी मिल है। उसके हिसाब से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा रिकॉर्ड हो गया कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं। लेकिन कोई सोचेगा कि पंजाब से ये चीजें जो आपने नहीं, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने 150 पेजेस मंगाए थे। मेरे पासपोर्ट की कॉपियाँ, मेरे मदर के पासपोर्ट की कॉपियाँ, नाम अप्रूव करने के लिए सब मंगाए थे उन्होंने। ब्लड ग्रुप भी सेम है? हाँ, ब्लड ग्रुप भी सेम है। आपकी कभी मुलाकात हुई मोदी से पहले? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। देखिए, काम करने का मौका मिलेगा तो उनके साथ काम करेंगे। आपको कैसा लगता था? आप भी निकलते हैं कहीं? मैं ऐसे जनरल ऐसा ड्रेस पहन के नहीं आता हूँ, मुझे जाना ही नहीं मिलेगा। बाकी आप शो में कितना हिस्सा लेते हैं आप? ऐसा बहुत कम, ऐसे अच्छे शो होता है तो मैं आता हूँ, अच्छा कोई अच्छे काम के लिए। इतनी चीजें मोदी से मिलती है, कहीं ना कहीं मोदी जी के डायलॉग भी आपको याद होंगे? मोदी जी के डायलॉग कहाँ बोलूँगा मैं आपको? क्या बोलेंगे? मैं ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया कभी। तो भारत माता की जय ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे भारत से बहुत प्यार है और भारत के लिए जान देने के लिए भी तैयारी रखते हैं। ऐसा हमारा समझना है, हमारा काम भी वही है। कभी आपने इच्छा बताई मोदी से मिलने के लिए? मैंने लेटर दिया है उनको, देखिए अभी 2016 में। क्या आपको लगता है भविष्य में आने वाले दिनों में मुलाकात होगी? मुलाकात होने के लिए क्या है, तो उनके पास जाए तो मुलाकात हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है वो। मैं मौके की तरह, मौका कुदरत देवे वो मैं चाहता हूँ। मैं जाऊँ ऐसा नहीं, कुदरत चाहे मिले। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने। ऐसा काम मैं ज्वेलरी बनाता हूँ। हाय, मेरा नाम है साक्षी होलकर और मैं गाती हूँ, प्लेबैक सिंगर हूँ। और आज मैं एक इवेंट में आई थी जहाँ पर मैंने कुछ सॉन्ग्स परफॉर्म किए। कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच के हमारे शो में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है परफॉर्म करके। और कोरोना योद्धा के लिए जो है एक ट्रिब्यूट हमें देने के लिए जो मौका मिला, सो आई एम प्राउड ऑफ इट एंड आई फील हैप्पी। आपके प्रोफाइल की बात करें, सिंगिंग कब से करते हैं? प्रोफेशनली करते हैं या
हाँ जी, बिल्कुल प्रोफेशनली करती हूँ। जब मैं 6 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ और परफॉर्म कर रही हूँ, ऑल ओवर ग्लोबली परफॉर्म कर रही हूँ। इसके बाद प्लेबैक सिंगिंग में भी पिछले कुछ सालों से मैं प्लेबैक सिंगर, एज एन प्लेबैक सिंगर भी काम कर रही हूँ। सो रिसेंटली आश्रम वेब सीरीज़ जो बॉबी देओल जी की थी, प्रकाश झाल जी ने जो डायरेक्ट की थी, वो की है मैंने। हाँ जी, तो ये भजन था एक आश्रम फिल्म में, मैं गाती हूँ थोड़ा सा। आजा। बाबा तुम हो धरती अंबर, बाबा तुम हो 7 समंदर, छोड़ के सारी दुनियादारी बस जाए तुम्हारे अंदर, अपने भक्तों की शक्ति को तू ही सच कर डाले, तू ही सच कर डाले बाबा। सो ये एक भजन था मेरा आश्रम वेब सीरीज़ में, सो जिसके लिए आई एम थैंकफुल टू कुमार सर, इंदर सनी सर एंड सभी लोगों को जिन्होंने भी उसमें मुझे प्रमोट किया। एक्चुअली इट इज़ सेड, जब एडवर्सिटी आता है और मुश्किल आता है तभी हमारे अंदर का हीरा जागता है। हर आदमी के अंदर एक हीरो है, एक हीरोइन है। और मैं कॉलेजेस में ये लेक्चर देती हूँ कॉल्ड वीरांगना सीरीज, द वॉरियर विद इन। कोरोना वो टाइम है जो हम में से हर आदमी के अंदर से वो वॉरियर को बाहर निकाला है और उसने हर आदमी को ये सिखाया है कि जो जंग है ना हमारी, वो दुनिया से नहीं है, वो हमारे अंदर की वो जंग है। सही करना और सही चीज़ फॉलो करना, ये भी बहुत बड़ा वॉरियर का काम है। ऑन वन हैंड हमारे पास सोल्जर्स थे, हमारे पास पुलिस थे, हमारे पास डॉक्टर्स थे और वो सब थे जिन्होंने हमारे लिए रात दिन रोड पर जागा और लोगों की अपने खुद की परवाह न करते हुए लोगों की हिफाजत की। ऑन द अदर हैंड बात सुनकर घर पर बैठने वाला आदमी भी उतना ही योद्धा है जितना कि वो आदमी है जो सीमा पर जाकर हमारे लिए लड़ता है। बिकॉज वो तो हमारी बचाव करता है, पर हम बहुत सारे लोगों को इसी प्रॉब्लम में आने से बचाते हैं जब हम प्रिकॉशन लेते हैं। ये ज़रूरी है कि वेन एवर पीपल ऑनर हु हैव डन अ ग्रेट जॉब, अच्छा लगता है। जैसे एक एक्टर को जाके आप फिल्म फेयर दो तो ऐसा नहीं है कि उसके फिल्म फेयर से उसकी एक्टिंग की कुछ हुई, लेकिन उसको अच्छा लगता है कि ही इज़ एक्नॉलेज्ड। द सेम वे एवरीबडी हु हैज़ डन ग्रेट सर्विस, it feels really nice to be acknowledged. We at Mega Foundation have been feeding the Adivasis, have been feeding the poor, have been taking care of animals जिसको shelters नहीं है, जिनको घर से निकाल दिया गया है बिकॉज लोगों को लगा था कि जानवरों की वजह से कोरोना आता है। और उस टाइम पे उन सबकी हम लोग सेवा करते थे, पर इसलिए नहीं कि ट्रॉफी मिलेगा, पर एट द एंड अगर किसी ने आपको बुलाया इस बात पर और आपको ऑनर किया तो उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आइवा एंड दलजीत for having given us this platform and this opportunity। मैं तो नहीं बहुत छोटे सा काम करती हूँ, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। There is one person who has actually taken dead bodies in his own vehicle and given them a decent burial। वो तो मतलब परे है, ऐसे काम करने वाला मतलब खुदा का एक रूप है जो यहाँ पे आ जाता है धरती पे। ऐसे लोगों को ऑनर करते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच आइवा एंड दलजीत फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। जब ये मार्च में लॉकडाउन हुआ था और हमने देखा था, बिकॉज सारा दिन हम टीवी के सामने ही बैठे रहते थे और न्यूज़ आते थे, हमारे ग्रुप्स में न्यूज़ आते थे, आर्टिस्ट भी खाना बना कर लोगों को देते थे। मतलब रियल इंसानियत हमने कोविड में देखी। और अप्रैल से ही हम सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे थे कोरोना वॉरियर्स के लिए एंड पूरी इंडिया में कम से कम 5000 सर्टिफिकेट हमने अप्रैल से स्टार्ट किए थे। तो अभी 2021 आया तो हमने सोचा कि कोविड को गुड बाय करें, दोबारा से लाइफ को ट्रैक पर लेकर आएँ और योद्धाओं को सम्मान दें और एक एंटरटेनमेंट कल्चरल प्रोग्राम करके। बिकॉज हर साल हम एक शाम देश के नाम करते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि एक शाम कोरोना वॉरियर्स के नाम करें, जिन्होंने रियली, बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम, जो लोग इससे बाहर निकले हैं। और मतलब इस कल्चरल प्रोग्राम से लोगों को लगा कि नहीं, अब हम ठीक हो गए हैं, अब हमें दोबारा से काम स्टार्ट करना चाहिए। सो यही मेरे जहन में आया और मैंने ये प्रोग्राम कर डाला। मैम, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये करना कितना ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था, बिकॉज एक डिप्रेशन और एक स्ट्रेस था कि पता नहीं काम शुरू होगा कि नहीं, अब आगे क्या करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डांसर्स ने, सिंगर्स ने एंटरटेन करके सबको पॉजिटिव किया और सबके पॉजिटिविटी आनी बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम के माध्यम हमने पॉजिटिविटी सबके अंदर लेकर आए हैं एंड सारे ऑडियंस भी लास्ट तक रुके हैं। सो दैट वाज अमेजिंग कि एवरीबडी एंजॉयड द होल प्रोग्राम।
और अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है आइवा के लिए और आपके लिए, क्या क्या प्लानिंग चल रही है? आइवा का अगला प्रोग्राम सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के अवार्ड है सीज़न 2, जो कि हम अप्रैल एंड में करने जा रहे हैं। उसमें हम अभी वुमेन अचीवर अवार्ड किया था, वो भी सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के के लिए किया था। और अभी लेट्स सी हाउ इट कम्स, बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ नहीं आते हैं ड्यू टू कोविड। आज भी हमारी जो मेयर साहब हैं वो आने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते फिर वो कहते नहीं मैं पब्लिक में नहीं जाऊंगी, तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस तो हैं, बट फिर भी काफ़ी लोग आए एंड वी रियली हैड फन टुडे, वी एंजॉयड द होल इवेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबडी वाज हैप्पी। Thank you so much, ma'am, and all the best. Thank you very much. Thank you. I am very much thankful to Dr. Daljit Kaur and Aiva Amar Singh Production for choosing me as a Women Achiever Award. I am Dr. Archana Singh from Mumbai. I am an Ayurvedic consultant. Thank you, Dr. Daljit Kaur, for choosing me as a Women Achiever Award Aiva 2020. Thank you so much. मैं श्रीनगर सिंह बरनाला चंडीगढ़ से आज ही आया हूँ मैं, और ये मेरे को पता लगा कि कोरोना का वो प्रोग्राम हो रहा है तो मैं इधर पहुँच गया। मैं 5 महीने पहले 30 सितंबर को ही फर्स्ट वैक्सीन लगवाई थी, 28 डेज के बाद 28 नवंबर को सेकंड डोज लगी थी। 5 महीने हो गए, 6 महीने का ट्रायल चल रहा है, अभी मार्च में मेरा फाइनल हो जाएगा। हम लोगों ने पास की है दवाई, तो ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड में ये दवाई लग रही है कोरोना कोविशील्ड वैक्सीन। थैंक यू।